Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us Sameer Soni sir. Welcome to Bollywood Spy. Thank you. Thank you so much. So we can see love, fight, drama, a competitive spirit जो एक बैंग ऑन सीजन पंच बीट के साथ दोबारा वापस आ चुका है. People have loved season 1 and they are loving season 2 even more. What feedback and reactions are you getting? See, it's still a little early because Kali release हुआ है. But from what I've heard, because there was a lot of expectations, season 1 was such a big hit. So we were thinking, yeah, I hope we can match it. But so far, it's very good. I mean, the youngsters love it. So I'm super excited. I'm very, very excited. तो आपने पूरी सीजन देखी अपने फैमिली के साथ? अपनी वाइफ के साथ देखा, of course. I saw and we enjoyed it. Yeah, it was good fun. I'm a very evil guy in this, so my wife was giving me dirty looks. So, but yeah, I think the youngsters, Priyank, Siddharth, Nikhil, Kushi, Kajol, everyone have done a fabulous job. I loved their work. I really, really loved their work. So, yeah, it's always good to be part of youngsters thing here. It's always fun. So, and I'm very happy for them. समीर सर, वी हैव सीन कि आपने सीजन 1 में भी एक बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था, सीजन 2 भी. बट अगर आपके फेवरेट सीजन की बात की जाए तो दोनों में से कंपैरेटिवली व्हिच इज मोर क्लोज टू योर हार्ट? हाँ, क्लोज टू माय हार्ट. हार्ट के क्लोज तो दोनों में से कोई नहीं है. बिकॉज इतना खराब, इतना ऐसा खराब आदमी दिखाया मेरे को. बट इट इज फन प्लेइंग. आई एंजॉय प्लेइंग द कैरेक्टर. मतलब वो है ना कि मैं हूँ जो हूँ, जैसा हूँ. एंड आई नो मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, बट आई डोंट केयर. तो किसी की परवाह नहीं है. सो आई लव दैट पार्ट ऑफ हिम. बीच में आज इस सीजन में उसका डायलॉग भी होता है राजवीर का कि आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम अ जर्क, बट आई एम ओके विद इट. So that is the core of the character ki matlab unapologetic, which is there in season 1, and in season 2 you see a slight shift, but that one thing, that confidence, that arrogance ki it's my way or the highway, wo jo garur hai, jo as a person I don't like it, but it is fun to play something you're not. So that is really exciting. That's why in fact tabhi maine ye role ke liye agree kiya, because to play yourself is boring. कुछ अलग बनने का मौका मिले तो मजा आता है. So I loved it. So was there anything like even one characteristic that you can relate to? Any character scene? Yeah, any character scene or any characteristic of the character. मतलब honestly बिल्कुल ही राजवीर is the diametrically opposite मेरा. मतलब कि he creates scenes. He's almost an alcoholic, has no respect for women. He's like, his mantra is I want to win and be the best at any cost. So as much I understand that passion and that confidence to be yourself, because we live in a society जिसमें हम politically correct रहते हैं कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ऐसा बोलेगा तो लोग क्या बोलेंगे. राजवीर doesn't care लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे. So I admire that quality in him. मगर वो कुछ ज्यादा ही बोल जाता है. इतना नहीं बोलना चाहिए. But that is one part I enjoy. That freedom, मतलब which is not possible in today's day and age. Because you don't want to hurt anyone. मगर वो है, वो कुछ भी बोल देगा. उसको जो मन में आएगा, जो करना है करेगा, मार भी खाएगा, मारेगा भी, सब करेगा. So I love that about him. It's good fun to play that. So yeah, so I admire that kind of passion. कि मैं बेस्ट हूँ और दैट टू बी निडर, कि मुझे किसी से डर नहीं, जो बोलना बोलो. सो आई लाइक दैट. तो समीर सर, आप एक बहुत ही लंबे समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, टीवी, सिनेमा और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी. रिसेंटली कुछ सालों में ओटीटी का जो एक बूम आया है, इट इज वेरी नेक्स्ट लेवल. हाउ डू यू टेक दिस एज? एक्सीलेंट. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. It's another platform जो उसमें लोग देख सकते हैं. एंड सबसे बड़ी बात OTT की है कि इट इज कंटेंट ड्रिवन. आप किसी हद तक देखेंगे, अगर फिल्म्स आर मोर पर्सनालिटी, एक्टर्स, बिग प्रोड्यूसर्स, बिग नेम्स ड्रिवन.
कि अगर आपको फिल्म हिट करवानी है, इनिशियल चाहिए, तो बड़ा नाम तो होना ही चाहिए. OTT इज ओनली अगर इफ द शो इज गुड, तो कोई भी मेन लीड में हो, डजंट मैटर. People in fact appreciate that. So I think it is giving a new platform to a lot of directors, actors, producers, writers to say what they want to say and how they want to say it. Because काफी ऐसी चीजें हैं जो आप फिल्म में नहीं दिखा सकते. यहाँ पर भी सेंसरशिप का इतना कुछ है नहीं, इतना जितना फिल्म में होता है. तो लोगों को एक आउटलेट मिल रहा है, पहले भड़ास निकल रही है, which is a good creative outlet is always good. And so I think it's a very good thing. And even जो लोग देख रहे हैं, मतलब आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि थिएटर जाओ. आजकल तो खैर वैसे ही प्रॉब्लम है. या टेलीविजन में जो शोज होते हैं, जो शोज बनाएंगे वो आपकी मम्मी को भी पसंद आना चाहिए, आपको भी पसंद आना चाहिए, तो वो लिमिटेड हो जाता है. यहाँ पर आप अपने फोन में रात के 2 बजे 3 बजे जब देखना चाहते हो, जो टाइम मिल जाए, आप गाड़ी में हो, कार में हो, बस में हो, जहाँ पर भी हो. तो इवन फॉर अ व्यूअर आपको इतनी चॉइसेस हैं देखने के लिए. So it's a win-win situation for everyone. It's good for the industry because आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है. Good for viewers कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यार ये देखना, नहीं देखना है चल छोड़ दो. And it's not like as expensive कि अगर आप किसी थिएटर में भी जाएंगे तो एटलीस्ट अगर एक फैमिली जानती है तो एक रात में कम से कम 1000-1500 रुपए तो गए आपके. यहाँ का मेंबरशिप क्या होता है, 200-300 रुपए महीना, जितना देखना देखते रहो, नहीं पसंद आया तो दूसरा देख लो. So I think it's a great thing. I have nothing to complain. अभी कंटेंट में है थोड़ा डिबेट चल रहा है कि कंटेंट शुड बी अप्रोप्रिएट, व्हिच आई एग्री विद. वो क्या फाइनल क्या डिसीजन लेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, कौन क्या देख सकता है, वो एक बड़ा सवाल है. वो आई एम श्योर कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका भी. तो जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जब लोग OTT की बात करते हैं, लोग कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर सेंसरशिप मतलब इम्पोज किया जाए यहाँ पर भी, OTT प्लेटफॉर्म पे भी, तो क्या आपको लगता है कि वो जो ऑथेंटिसिटी है या जो एक क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाएगी? देखिए, लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी. वो मतलब कि एटलीस्ट व्यूअर को तो पता चले कि आप क्या देखने वाले हैं. अगर मैं अपने किसी के साथ देखना चाहता हूँ, एटलीस्ट आई शुड नो ना कि मैं अपनी बेटी के साथ वो देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ. तो सेंसरशिप डजंट नेसेसरली मीन कि काट दो, ये हटा दो, वो हटा दो. It means at least people should know कि this is age appropriate. ये I think common sense है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. और फिर अगर आप where do you draw the line, तो कल को तो लोग बोलेंगे यार pornography डाल दो आप. तो कहीं ना कहीं तो आप मेंटली आप जाने अनजाने एक लकीर तो खींचते हैं. बनाने वाला खुद भी खींचता है, वो कहता है नहीं यार ये नहीं कर सकते, ये नहीं दिखाना चाहिए. आप एक वैल्यू सिस्टम तो यूज करते ही हैं. तो वो आई थिंक अगर कोई लोग अगर ना करे तो प्रॉब्लम है आई थिंक. तो आई थिंक दैट लाइन हैज टू बी ड्रिवन, मगर उसकी कॉस्ट भी आएगी. कॉस्ट ये होगा कि शायद कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट रह जाए, मगर देन मेरा कहना है कि यू हैव टू लर्न टू कन्वे द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. जरूरी नहीं है कि आप गाली गलौज दिखाएं, जरूरी नहीं है आप न्यूडिटी दिखाएं, उसके बिना भी काम हो सकता है, या सटली भी दिखा सकते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल ना हो. तो सेंसरशिप का जो सवाल है, इट्स लाइक अ दो धारी तलवार. मतलब कि ऐसे भी गए तो लोग बोले अरे क्यों कर दिया, काट दिया, नहीं करे तो अरे ऐसा दिखा रहे हो हमारे को, तो करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे. तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग लाइन टू ड्रॉ. और कैसे किया जाए, क्या पैरामीटर्स हो, वो उस पर लोगों को सोचना पड़ेगा. उसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ. इट्स टू अर्ली, बिकॉज यू राइट, कहीं भी आप सेंसरशिप लगाओगे तो आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिखाना चाहो दिखाते रहो. वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं तो सीमा बनानी पड़ेगी. बिल्कुल सीमा बनानी पड़ेगी. सो अगर पंचवीर की अगर हम बात की जाए तो हम बहुत सारे इमोशंस उसमें देख सकते हैं, हेट्रेड, अग्रेशन, कॉम्पिटिटिव, लव, फाइट. लेकिन ये जो एक सीरीज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूथ ओरिएंटेड है. जब इस तरह की सीरीज यूथ के सामने आती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक एज होती है यूथ की, वो कहीं ना कहीं सारे ही इमोशन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? क्या यूथ इसको देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ये आप कह रही हैं? जी देखिए, ये तो बहुत पुराना डिस्कशन है फिल्म्स का और ऑडियंस का. अब कौन किसको देख के इन्फ्लुएंस होता है, एक सर्कल है. फिल्म्स होती हैं कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड हो जाती है, रियलिटी है कहीं फिल्म से इन्फ्लुएंस हो जाती है. सेम विद OTT, सेम विद आवर शो.
कहीं अगर कुछ जो दिखा रहे हैं वही कहीं 10% 15% कुछ रियलिटी में बेस्ड होगा, कहीं 10-15% जो रियल में लोग हैं वो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये तो गिव एंड टेक तो चलता ही रहेगा, ये तो मतलब यू कांट अवॉइड, मतलब कि और ये कहना कि लोग जो आप दिखाते हैं वैसा आपकी नकल करेंगे, वैसा तो होगा नहीं, कभी होता नहीं है ये, मतलब दैट्स अ वेरी सिली नोशन। क्योंकि हम कब से बोल रहे हैं कि रिलीजन के नाम पे नहीं होना चाहिए, कब से अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में बनी थी, मगर आज भी हम देखें तो सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे कभी इशू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इम्पैक्ट है, वो कितना स्ट्रांग है वो कहना मुश्किल है। आजकल लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ये नहीं कि आपने किया तो हम भी ऐसा करें। वो ये है, कोई लड़की देख के बोलेगी हाँ ये कपड़े अच्छे लगते हैं ना, मैं भी ऐसी ड्रेस बनाऊंगी, या कोई लड़का बोलता है यार मुझे भी सिक्स पैक चाहिए, व्हिच इज ओके। नहीं, जानबूझ के कोई अपना जो नेगेटिव चीज है वो अपनाएगा नहीं। अब ये हो गया बिकॉज ऑफ सॉरी बहुत जी यस यस प्लीज गो अहेड। नहीं, जैसे मतलब आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, ये है वो है कि अरे यार वहां पर तो कार्डाशियंस ऐसा पहनती हैं, ये पहनती हैं, या हमको शेप में सब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि कैसा दिखते हैं, वो सब लगे हैं सेल्फी लेने में। तो ये तो होता ही रहेगा, मतलब एक्सचेंज, इसका इन्फ्लुएंस उस पे, उसका इन्फ्लुएंस पे तो मतलब होगा ही उस पे। आई थिंक मगर ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है कि सडनली सब पागल हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जानते हैं कि फैंटेसी है, वो भी बोलेंगे यार ऐसा थोड़ा होता है, सब जानते हैं, इंटेलिजेंट लोग, इट्स एंटरटेनमेंट। So Samir sir, we have encountered a fabulous, I would say, season 1 of Fabulous Vibe, जो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था ऑडियंस के द्वारा। When should we expect season 2? When का मुझे पता नहीं, but from what I understand, I think season 2 is going to come. But कब है I don't know. I really don't know. Because of COVID आ गया था, so obviously there's no shooting happening. So I don't know when it's going to happen. Are you excited for season 2? Am I excited for season 2? I mean, जितना लोगों को पसंद आया, I mean, it's like eye opening. मतलब मेरी expectations से ज्यादा. So yeah, I'm looking forward to it कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सिचुएशंस में होगी, बिकॉज देयर इज नथिंग, कोई ऑर्केस्ट्रेशन तो है नहीं कि मतलब बनाया जा रहा है। सो लेट्स सी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक तो कोई क्रिएटिव डिस्कशन हुआ नहीं है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईगरली टू सी व्हाट आइडियाज कम अप, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। दैट्स द ट्रूथ। Okay, so one good and bad compliment that you have received from this? For the Vibe. अच्छा, अभी आप उसमें अटके हुए हैं। गुड कॉम्प्लीमेंट, बैड तो किसी ने कुछ नहीं बोला। गुड यही बोला कि यार एवरी लॉट ऑफ हस्बैंड्स रिलेटेड टू मी, सब कहते हैं कि यार यहाँ मेरा ये सब, मैं भी ऐसे ही हूँ यार। एंड वाइफ्स आल्सो यार माय हस्बैंड इज लाइक दैट, कहीं बाहर ही नहीं जाता है। तो आई गॉट लॉट ऑफ दैट रिएक्शन कि हाँ यार, आई मीन रियल है, तो व्हिच इज गुड इफ पीपल कैन रिलेट टू यू, व्हिच इज नाइस, आई थिंक, यू नो। तो दैट्स बैड, ऐसा कुछ बोला नहीं, कुछ मुझे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब आई थिंक जो लेडीज है उनकी तरफ होगा जो भी होगा, मेरी तरफ कुछ नहीं था। Alright. Okay, so this year seems to be amazingly perfect for you, like Mumbai Saga and then the Big Bull and then the Punch Beat, back to back आप धमाके कर रहे हैं. What else should we expect? There's another show releasing with Akshay Khanna that should be out soon, and अभी थोड़ा gap है, but I'm sure by the end of the year you'll see some interesting things. I'm working on a book, so a book will come this year. So I think book year end तक release हो जाएगी. So I'm excited about that कि लोग कैसे react करेंगे मेरी writing को. So that is one big thing. And there are a lot of interesting projects because of OTT. There's so many things being made that it's very good time. Not just for me. I'm grateful for whatever it is for me, but for everyone, it's very good. And this is the start of my second innings, like I say. So I'm excited about it. Now I'm coming back as a bad guy. And you're loving it? I'm loving it. बहुत हो गया शरीफ, good boy, good husband. अभी बस I want to play evil, negative. I mean, I'm having fun. A lot of fun now. It's good time for me. Good time for me. That's good to that as well. Thank you for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much.